अब हम आते हैं स्टूडेंट्स हमारे आज के नई वीडियो पर। आज स्टूडेंट्स हम क्लास 7 वर्कबुक यूनिट 8 के लिंक लेसन फायर फ्रेंड एंड फो को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी शैल सॉल्व क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 8 लिंक लेसन फायर फ्रेंड एंड फो। So let's start our video. First of all is comprehension. A. Read the passage and answer the questions. Oil spills happen when people mistakes or are careless and cause an oil tanker to leak oil into the ocean. Equipment breaking down may cause an oil spill. Illegal dumpers are people who dump crude oil into oceans because they do not want to spend money on decomposing their waste oil. Natural disasters like hurricanes may cause an oil spill too. Birds die from oil spills if their feathers get covered in oil. The bird will then be poisoned because it will try to clean itself. Animals may die because they get hypothermia, causing their body temperature to fall, and they die due to low body temperature. Oil can blind an animal. The animals are not able to see and be aware of predators who then attack and kill them. Oil may also cause the death of an animal by entering the animal's lungs or liver. The animal will then be poisoned by the oil. Now questions. First one, when do oil spills happen? तेल रिसाव कब होता है? Oil spills happen when people are careless and cause an oil tanker to leak oil into the ocean. Second one, who are illegal dumpers? अवैध डंपर कौन है? Illegal dumpers are people who dump crude oil into oceans. Third one, who suffer from oil spill? तेल रिसाव से कौन पीड़ित होता है? Birds and animals suffer from oil spill. Fourth one, how do birds get poisoned? पक्षी जो हैं जहरीले कैसे हो जाते हैं? Birds get poisoned because they will try to clean themselves as their feathers get covered in oil. So birds get poisoned because they will try to clean themselves as their feathers get covered in oil. Now fifth one, what happens due to hypothermia? Hypothermia से क्या हो जाता है? Animals die due to hypothermia. Hypothermia से animals की मृत्यु हो जाती है. Sixth one, what happens when animals are blinded by oil? क्या होता है जब पशु तेल के कारण अंधे हो जाते हैं? When animals are blinded by oil, they are attacked and killed by the predators. I again repeat, when animals are blinded by oil, they are attacked. उन पर हमला किया जाता है और उन्हें प्रेडेटर्स के द्वारा मार दिया जाता है। तो जब जानवर जो हैं ऑयल की वजह से अंधे हो जाते हैं तो उन पर जो है प्रेडेटर्स अटैक करते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज वोकेबलरी। ए, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू मेक वर्ड्स रिलेटेड टू फायर। फायर से संबंधित शब्द बनाने के लिए जो लेटर्स मिसिंग हैं उनको भरो। तो आप देख सकते हैं बीच में फायर लिखा हुआ है और जो मिसिंग है उनमें हमें जो है लिखना है। तो आप देख रहे हैं हमने जो है एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है, स्टेशन लिखा हुआ है, अलार्म लिखा हुआ है। तो ये जो हैं वर्ड्स हैं वो रिलेटेड टू फायर हैं, जैसे एक्सटिंग्विशर,
स्टेशन और अलार्म। नाउ बी, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग आर, ई आर, ओ आर टू द गिवन वर्ड्स। आप नए शब्द बनाएं जिनमें आप आर जोड़ें, ई आर जोड़ें या ओ आर जोड़ें जो दिए गए शब्द हैं उनमें। एग्जाम्पल, राइट प्लस आर इज इक्वल टू राइटर, पोस्ट प्लस ई आर इज इक्वल टू पोस्टर। तो अब है एक्ट, तो एक्ट प्लस ओ आर इज इक्वल टू एक्टर। फिर है ड्राइव, ड्राइव प्लस आर इज इक्वल टू ड्राइवर। फिर है सिंग, सिंग प्लस ई आर इज इक्वल टू सिंगर। फिर है ट्रेट, ट्रेट प्लस ओ आर इज इक्वल टू ट्रेटर। फिफ्थ है हेल्प, हेल्प प्लस ई आर इज इक्वल टू हेल्पर। नाउ सिक्स्थ, एडिट, एडिट प्लस ओ आर इज इक्वल टू एडिटर। फिर है सेवेंथ, जोक, जोक प्लस आर इज इक्वल टू जोकर। फिर है कंडक्ट, कंडक्ट प्लस ओ आर इज इक्वल टू कंडक्टर। नाउ नाइन्थ, पेंट, पेंट प्लस ई आर इज इक्वल टू पेंटर। फिर है टीच, टीच प्लस ई आर इज इक्वल टू टीचर। नाउ ग्रामर, a sentence is said to be in the active voice when the subject is the doer of the action. It is said to be in the passive voice when the subject is not the doer of the action. A, rewrite the following sentence in the passive voice as shown in the example below. Example, he will eat an apple. ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। तो ही आपका जो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है, ही विल ईट एन एप्पल, इसमें ही सब्जेक्ट है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, ईट आपका वर्ब है और एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है। तो एन एप्पल जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना दिया, एन एप्पल हो गया। फिर विल का विल ही रहा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो फिर बी आएगा, बी ही, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और फिर हम लगाएंगे बाई और ही को चेंज कर देंगे हम हिम में, तो हिम जो है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है बाकी के सेंटेंसेस में। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये सेंटेंस हैं, यही स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस आपका जो है विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार जो है आप सेंटेंस करेंगे फ्यूचर वाले, और बाकी जो हैं दूसरे टेंस के आएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट चेंज डिड यू सी वाइल चेंजिंग द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव? द सब्जेक्ट एप्पल इन द एक्टिव वॉइस, the object apple in the active passive voice becomes the subject in the active passive voice। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्टिव वॉइस में जो एन एप्पल है वो आपका ऑब्जेक्ट था, और जब हम पैसिव करते हैं तो एन एप्पल जो है फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट जो एप्पल है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, ये बात इसमें कही गई है। अब फर्स्ट सेंटेंस है, दे विल पेंट द हाउस, वे हाउस में पेंट करेंगे, तो दे सब्जेक्ट है, विल है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर द हाउस आपका ऑब्जेक्ट है। द हाउस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, पहले आ जाएगा, फिर विल का विल ही रहेगा, फिर हमें बी लगाना होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फिर पेंट की थर्ड फॉर्म कर देंगे पेंटेड, फिर बाई और दे का हो जाएगा देम, तो देम यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द हाउस सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर पेंटेड थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर आपका ऑब्जेक्ट। नाउ सेकंड, द टीचर विल रिवार्ड मोहन, टीचर मोहन को रिवार्ड करेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मोहन पहले आ जाएगा, फिर विल, फिर बी, फिर रिवार्ड की थर्ड फॉर्म रिवार्डेड, फिर बाई और फिर द टीचर। मोहन विल बी रिवार्डेड बाय द टीचर। दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के थे। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला वही, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ थर्ड वन, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है।
ये आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट हो अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव करते वक्त हम बीन लगा देते हैं। तो माई पर्स जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, हैज का हैज ही रहा, फिर बीन लगा दिया, और फिर स्टोलन बाय समवन जो है लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अंडरस्टूड होता है। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन। फोर्थ वन, वी शुड ओबे रूल्स। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही बनेगा जो हमने पहला और दूसरा सेंटेंस किए थे। तो रूल्स जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर शुड का शुड ही रहेगा, फिर बी आ जाएगा वैसे ही, फिर ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगी, और फिर बाई और बी का कर देंगे अस। तो रूल्स सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अस है। फिर अगला राम ईट्स केक। रामा ईट्स केक। तो रामा जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, और फिर केक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके पैसिव वॉइस करते वक्त हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो केक को हम पहले ले आएंगे, केक जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसके साथ लग गया इज, फिर इट की थर्ड फॉर्म इटन, फिर बाई, और फिर रामा। तो केक इज रिटन बाय रामा, ये आपका पैसिव सेंटेंस होगा। केक सब्जेक्ट, फिर इज हेल्पिंग वर्ब, इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट जो है रामा। तो रामा वहाँ पर सब्जेक्ट था, वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट बन गया, और केक जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट। नाउ बी, यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इफ ए फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी डेंजरस। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शिप्स आर एंड शॉप्स आर डैमेज्ड। इन सेंटेंस वन, get is an example of active voice used in the simple present tense. If a fire gets out of control it can be dangerous. तो यहाँ पर जो गेट है वो एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सेकंड सेंटेंस जो है, ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड। इन सेंटेंस टू में जो आर डैमेज्ड है इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमने सेंटेंस किया था पांचवा, उसमें बताया था कि मैंने आपको एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है, और पैसिव वॉइस अब बनाते हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। नाउ सी, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. Doing something that ब्रैकेट में गिव प्लेजर इज ए वेल स्पेंड टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा गिव्स। डूइंग समथिंग दैट गिव्स प्लेजर इज ए वेल स्पेंड टाइम इफ द एक्टिविटी चोजन डैश नॉलेज और अनबर्डन्स द माइंड इट डैश आवर थिंकिंग पावर। तो इन दोनों ब्लैंक्स में जो दे रखा है ऐड का हो जाएगा एड्स, और एनहेंस दे रखा है उसका हो जाएगा एनहेंसेस। हम सब जगह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर अब तक हमने यूज किया है। वर्किंग मैथोडिकली डैश इन वैल्यूएबल टाइम, ब्रैकेट में दे रखा है सेव, तो हो जाएगा सेव्ड। सभी में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। वो हमें देखना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पुटिंग अवे बुक्स पेपर एंड पेंसिल्स आफ्टर यूजिंग दैम मेक्स इट ईजियर टू फाइंड दैम, ब्रैकेट में मेक है तो आएगा यहाँ पर मेक्स। व्हेन दे डैश अगेन, ब्रैकेट में नीड है तो दे आ गया, दे के साथ हम नीड्स नहीं कर सकते क्योंकि दे प्लूरल है, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नीड। 6 to 7 hours ऑफ स्लीप a day इज कंसिडर्ड क्वाइट इनफ फॉर एडल्ट्स। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के रूप में जो है इज के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया है कंसिडर्ड का। ब्रैकेट में कंसीडर है तो हो जाएगा कंसीडर्ड, क्योंकि इज लगा हुआ है। तो यहाँ पर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म अगर हम लगाते हैं तो वो पैसिव सेंस में होता है। नेक्स्ट, एनी एक्स्ट्रा टाइम स्पेंट इन बेड विल ओनली गिव राइज टू लेजीनेस। लेजीनेस डैश टाइम फॉर दोज हु डैश अगेंस्ट इट। तो स्टील है तो स्टील्स का हो जाएगा स्टील्स। फॉर दोज हु नॉट गार्ड है तो डू नॉट गार्ड हो जाएगा।
Any extra time spent in bed will only give rise to laziness. Laziness steals time for those who do not guard against it. Now, speaking and writing composition, Akshay observes that we need to conserve fuel for our future generation. Write some of the ways in which we can conserve fuel. Use the following hints. डू नॉट कट ट्रीज, वृक्ष न काटे. यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का प्रयोग. डोंट यूज व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटी दूरी तय करने के लिए वाहन का प्रयोग न करें. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जन यातायात का प्रयोग करें. कुक फूड एट लो फ्लेम, कम आंच पर खाना पकाएं. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका ट्रीज शुड नॉट बी कट. हिंट से हमने क्या लिया? डू नॉट कट ट्रीज से ट्रीज शुड नॉट बी कट. सेकंड, यूज ऑफ सोलर एनर्जी, तो हो जाएगा सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड. फिर है डोंट यूज व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, इसका हो जाएगा व्हीकल्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. फोर्थ, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड. फिर है कुक फूड एट लो फ्लेम, इसका हो जाएगा फूड शुड बी कुक्ड एट लो फ्लेम. फूड शुड बी कुक्ड एट लो फ्लेम. दोबारा फूड नहीं आएगा. तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिव में दे रखे थे हिंट्स, इनको हमने पैसिव में किया है. तो शुड के बाद हमने जो है बी लगाया है और फिर उसकी थर्ड फॉर्म की है. जैसे आप देख सकते हैं, शुड बी कट, शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड, शुड बी कुक्ड. ये पैसिव स्ट्रक्चर में हमने जो है किया है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 8 को सॉल्व किया. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.